السلام علیکم ناظرین، جو بھی مجھے وقت وطن کشمیر سے دیکھ رہے ہیں، جموں کے عوام کے لیے آداب، نمستے، ست شری اکال۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر سہیل خان۔ آپ لوگ ایک چیز سے بخوبی واقف ہوں گے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کافی طرح جو عوام ہے اس نے اس چیز کی خلاف ورزی کی، اور ان کا فرمانا تھا دفعہ 370 کی منسوخی جو ہے وہ قطعی طور پر غلط طریقے سے کی گئی اور ہم اس چیز کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی سب پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک قداور شخصیت ہے، ایک جانی مانی حیثیت ہے، جو فارمر جج بھی رہ چکے ہیں، مظفر اقبال صاحب جی، اور این سی کے ایک قداور لیڈر بھی ہیں راجوری سے۔ انہوں نے اپنا قیمتی سمے دیا، اس کے لیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔ میری اگر بات ظاہر اس الفاظوں میں اگر کہی جائے تو میں آپ سے 370 پہ آج بات کرنے والا ہوں، اور یہ 370 کا مدعا وہ ہے کہ جو پچھلے 5 اگست سے لے کر ابھی تک سرخیوں میں بنا ہوا ہے۔ 5 اگست 2019 میں 370 جو ہے اس کی منسوخی ہوئی، اور اس کے بعد کہا گیا جو رولنگ پارٹی ہے یا کافی طرح کے جو عوام ہے یا کافی طرح کے قداور جو لیڈرز ہیں، ان کا فرمانا تھا کہ آج کے دن ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں، 1947 میں آزاد نہیں ہوئے۔ یہ جاننے کی سب سے بڑا سوال رہتا ہے، کیا لگتا ہے جج صاحب آپ کو کہ 1947 میں کیا ہمیں آزادی نہیں ملی تھی؟ اب جا کے 5 اگست کو ہمیں جموں کشمیر کے باشندوں کو آزادی ملی ہے، اور اگر آزادی ملی ہے تو تلنگانہ جیسے اسٹیٹس میں قربانیاں دے کر یو ٹی سے اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ لیا، اور جموں کشمیر کے عوام نے قربانی دی اور یو ٹی کا درجہ لیا۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو خالی قربانی نہیں، ان کو بلی کا بکرا بنایا گیا، اور پورے ہندوستان میں اس پر ووٹ بٹورے گئے ہمارے بچوں کو قربان کر کے۔ جی، یہ چیز اب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی ہے لوگوں کو۔ 370 جو تھا وہ صرف کوئی کشمیر والوں کے لیے نہیں تھا، نہ وہ ہندو تھا نہ مسلمان تھا، وہ پوری جموں کشمیر کی عوام کے لیے تھا۔ اور مہاراجہ نے جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا دلی سرکار کے ساتھ، اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں کہا کہ 3 چیزوں پہ اور ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ڈیفنس، کمیونیکیشن اینڈ فارن افیئرس، اس پر پارلیمنٹ کو اختیار ہوگا۔ شک 6 اس میں جو تھی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں، وہ کہتی کہ ہم اپنی ساورنٹی میں رکھوں گا۔ اور 370 میں اور بہت سارے معاملات تھے جو جموں کشمیر کی عوام کی بہتری کے لیے تھے۔ اب یہ ایک آئیڈیالوجیکلی ایک سیاست چلانے کے لیے بھئی ایک پرٹیکولر تنظیم جو تھی، پرٹیکولر ایک جماعت جو تھی، وہ پوری زندگی 47 سے 1947 جب ہم آزاد ہوئے تب سے لے کر آج تک وہ اسی پر پلتی رہی، اسی پر جیتی رہی سیاسی طور پر۔ انہوں نے ہماری قربانی لگائی اور پورے ہندوستان میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ 370 میں واضح کر دوں آپ کو، صرف 2 چیزیں بچ گئی تھی، باقی جتنا ہندوستان کا آئین تھا جس کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتے ہیں، اس کے تمام پروویژنس لاگو ہو گئے تھے، ماں سوائے 2 چیزوں کے۔ ایک 35A بچا تھا، اور 370 میں امپلائمنٹ اور لینڈ جو ہماری تھی وہ پروٹیکٹ تھی۔ جی، صرف 2 چیزیں بچی تھی۔ ان 2 چیزوں کا سب سے زیادہ فائدہ جو تھا وہ جموں کے لوگوں کو تھا۔ ان 2 چیزوں کا فائدہ اگر آپ دیکھو گے تو کشمیر میں کسی کو نہیں تھا۔ جو لوور لیول کی، یعنی جو ڈسٹرکٹ کاڈر کی پوسٹ ہے، کلاس 4 کی پوسٹ ہے، پولیس کنسٹیبل کی بھرتی ہے، اس میں کوئی بھی آدمی دلی سے، پنجاب سے، چندی گڑھ سے، ہریانہ سے کشمیر نہیں جاتا۔ وہ جموں میں آئے گا، وہ سانبا میں آئے گا، وہ کٹھوا میں آئے گا۔ بھرتی ہوگی اگر، اب آپ پنجاب کے، لدھیانہ کے، چندی گڑھ کے، شملہ کے یا دلی کے یا یو پی کے کسی آدمی کو آپ منع نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں درخواست نہیں لگاتے۔ آن لائن جب درخواست لگے گی، یہاں یو پی والا بھی آ کر مقابلہ کرے گا، یہاں بہار کا بھی مقابلہ کرے گا، یہاں لدھیانہ اور پنجاب کے جو بہت فزیکلی بہت اسٹرانگ لوگ ہیں وہ ہمارا مقابلہ کریں گے۔ ہماری امپلائمنٹ کا حصہ جو لیں گے وہ کس کا لیں گے؟ وہ جموں کا، کٹھوا کا، ادھمپور کا، پونچھ کا، رجوری کا۔ کشمیر میں تو کسی نے جانا نہیں ہے بھائی بھرتی ہونے کے لیے، نہ وہ لوگ جانے دیتے ہیں، نہ وہاں کسی نے زمین خریدنی ہے۔ بھائی ہم آج تک کشمیر میں جگہ نہیں خرید سکے، تو باہر سے آپ کہو گے کہ وہاں جا کر جگہ خریدے گا۔ دوسری بات، ایک تو یہ لاس ہو گیا۔ میں ایک ایگزامپل میں اور دے دوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اگر ابھی جموں میں
उधमपुर में या कठुआ में या पुंछ राजौरी में कहीं भी अगर आज टीचर की पोस्टें एडवर्टीज़ होती हैं, ये जितने केरालाइट्स लोग आए हैं यहाँ, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, आपने कभी इस पर गौर किया कि वो लोग यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, यानी प्राइवेट जो हमारे स्कूल एकेडमीज़ हैं, उनमें 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार या 7-7 हज़ार रुपये यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो दरख्वास्त लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और मेजॉरिटी जो लाइन शेयर होगा हमारी एम्प्लॉयमेंट का, टीचरों का, पुलिस का, वो तो बाहर के लोग ले जाएंगे। वो किसका हिस्सा मारेंगे? जम्मू वाले का मारेंगे या कश्मीर वाले? जी, आपकी जो चंद बातें हैं ये दुरुस्त हैं, लेकिन एक सवाल रहता है, जैसा बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से अपोजिशन वालों का भी कहना था कि जो 370 था ये सिर्फ एक खोखला दरख्त था, इसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा था, ये सिर्फ सियासत में रोटियां सेकने के काम आता था। ये एक वो तवा था जिस पे सियासत करती थी, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहा जाए या उसके साथ काफ़ी तरह की जो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं। 370 जो था वो ग्राउंड लेवल पर उसका कोई भी काम नहीं था, ये सिर्फ एक अपनी सियासत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और अब 370 की मनसूखी के बाद लगता है कि जो यूथ है उसमें एक नई उजागरण आएगी, यूथ आगे बढ़ेगा, रियासत जो थी ये यूटी बनकर अब इसमें तरक्की आएगी और जो यहाँ के बच्चे हैं वो और नए मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का कहना है कि डिजिटल इंडिया, नया दिन, एक नई सुबह। क्या लगता है कि यूटी बनने के बाद एक नई सुबह आने वाली है? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि अभी भी अगर हम इसी ख्वाब में जी रहे हैं कि स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनने से तरक्की होगी और स्टेट रुकावट थी। भाई 370 जब आप कहते हो खोखला था, मैंने आपको शुरू में कहा कि 2 ही चीज़ें उसमें बची थी, बाकी तमाम 370 वाकई खोखला कर दिया था। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने किया, खोखला किया उसको, लेकिन 2 चीज़ें बची हुई थी और वो 2 चीज़ें हमारे इंटरेस्ट में बहुत ही अहम थी। एक एम्प्लॉयमेंट, बाहर का आदमी यहाँ नहीं कर सकता था। एजुकेशन में स्कॉलरशिप, बाहर का आदमी जो था वो यहाँ बराबरी का हमारा, हम स्कॉलरशिप ले सकते थे 35A के तहत। और दूसरा, यहाँ की ज़मीन जो है वो यहाँ के बाशिंदे की थी, वो यहाँ का बाशिंदा ही उसका मालिक था। सिर्फ 2 चीज़ें बची थी, मैंने आपको पहले ही कह दिया शुरू में। बाकी सियासत की रोटियाँ सेकने की, सियासत की रोटियाँ जो उन लोगों ने सेकी जिन लोगों ने 370 पर सियासत की। हमने 370 पर कभी सियासत की ही नहीं और गैर आइनी तरीका इख्तियार किया गया। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में, मैंने भी पिटीशन की हुई है और बहुत सारे लोगों ने की है, बिल्कुल गैर आइनी, जिसका कोई आइनी जवाज़ नहीं, आपने वो तरीका इस्तेमाल किया है। आपने अपना ही गवर्नर बैठा के उससे कंसेंट लेके आपने इसको जो 370 में और आइन के अंदर जो उसका तरीका बताया था, उस तरीके को बिल्कुल उल्टा करके आपने उसको यहाँ से मनसूख किया है। दूसरी बात, तरक्की अगर यूनियन टेरिटरी से होती है और स्टेट से नहीं हो सकती। भाई स्टेट ज़्यादा पावरफुल है कि यूनियन टेरिटरी ज़्यादा पावरफुल है? आप ऊपर से नीचे आओगे तरक्की होगी या नीचे से ऊपर जाओगे तो तरक्की होगी? हमें तो ऊपर से नीचे लाया गया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रुकाना पसंद करूँगा। लगता नहीं कि आपको यूटी बनने के बाद 370 की और 35A की मनसूखी के बाद जो करप्शन है उसका जो पैमाना है वो कम होगा? पहले काफ़ी तरह से जो करप्शन थी वो भी इस रियासत के अंदर थी और इस करप्शन की वजह से ही काफ़ी तरह का जो यूथ था वो हमेशा एहतिजाज करता था, प्रोटेस्ट करता था, रोडों पे आता था, हक़ की बात करते थे, एम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाती थी। और जो हमारी कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, आज से पहले जो हमारे फॉर्मर CM रह चुके हैं या उसके साथ साथ काफ़ी तरह के और अहलकार और ओहदेदार जिन्होंने कुर्सियों पर बैठे थे, जो फाइज किए गए थे, उन्होंने यूथ को क्या दिया है आज तक? लगता है आपको कि इस यूथ में वो चीज़ें पैदा की हैं जिस चीज़ों की वजह से जो यूथ है वो स्टून पेल्टिंग की तरफ कम जाता और एक नई सुबह की और ज़्यादा जाता? भाई उसका 370 से और यूनियन टेरिटरी से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो लोग पत्थर मारते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, अब मैं कहता हूँ कोई दूध से धुला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप कहोगे करप्शन, तो करप्शन यूनियन टेरिटरी के बनने से कैसे रुक गई यार? आज तो करप्शन ज़्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं दावे से कह सकता हूँ। और इससे जो पिछली सरकार थी सबसे ज़्यादा करप्शन उसमें हुई है। जो आपकी बीजेपी की सरकार थी सबसे ज़्यादा करप्शन उसमें हुई है। अगर तारीख में आप देखोगे, मुआवजा करो आप, सबसे ज़्यादा करप्ट लोग उसमें थे। और एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन उससे बड़ी है, कम तो अभी नहीं हुई है 5 अगस्त के बाद। मुझे नहीं लगता है आपको जम्मू कश्मीर में कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि इससे करप्शन कम हुई। मुझे बताओ करप्शन क्यों कम होगी? क्या हो गया उससे? कोई वजह बताओ।
करप्शन जब आपका नुमाइंदा ऊपर ऑनेस्ट होगा, नुमाइंदा नज़र रखेगा तो करप्शन कम होगी। जब आप ऑफिसर को सब कुछ दे दोगे तो ऑफिसर तो करप्शन करेगा ही करेगा। करप्शन कम तो होने, मुझे ये बताओ इससे पहले जो हमारा अपना एंटी करप्शन लॉ था, जम्मू कश्मीर जो एंटी करप्शन लॉ था वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा सख्त था कानून। तो करप्शन का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? मैं कहता हूँ करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं पूरे से हिंदुस्तान से ख़त्म होनी चाहिए। अरे भाई जहाँ पूरे हिंदुस्तान से अभी ख़त्म नहीं हुई तो जम्मू कश्मीर में आप पहले ख़त्म कर दोगे करप्शन को, खाली इससे कि यूनियन टेरिटरी बन जाए, उससे इसका रिश्ता क्या है? कोई मुझे बताए। रूलिंग पार्टी का तो ये भी कहना है कि जो उनके प्रेसिडेंट हैं या बाकी तरह की जो उनके बड़े कद्दावर लीडर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, देशद्रोही पार्टी कहा जाता है इसको। अब देशद्रोही कोई कहेगा हमें तो कहे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अब जम्मू कश्मीर के हक़ के लिए लड़ने पर अगर किसी को कोई देशद्रोही कहता है तो कहे। भाई देशद्रोही इसी आइडियालॉजी पर 1947 से लेकर आज तक सियासत चलती रही। पहले वो हिंदुस्तानी थे और 5 अगस्त के बाद वो देशद्रोही हो गए कुछ लोग, तो उसमें हमारा क्या है? वो क्या उनका भी जज साहब यही फरमाना है कि 1947 में तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर 5 अगस्त को हुआ। अब जो 5 अगस्त के बाद यूटी के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं वो देशद्रोही आवाज़ें। हाँ सही बात है। अब अपने अपने कहने का अंदाज़ है। अगर वो कहते हैं कि हम, कुछ लोग कहते हैं कि हम 5 अगस्त को आज़ाद हुए, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये नज़रिया है कि 5 अगस्त को हम दोबारा ग़ुलाम हुए। 1947 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक हम आज़ाद थे। 5 अगस्त 2019 को पूरा जम्मू कश्मीर और बिलखसूस जम्मू प्रोविंस जो था वो फिर गुलाम हो गया। अच्छा, स्टूडेंट तबके की अगर बात की जाए, इंटरनेट नहीं चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है स्टूडेंट यूनियन को। और एक तरफ से कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी है, हालात जो हैं वो सुकून में हैं, कोई कशीदा नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये इंटरनेट जो सर्विसेज हैं ये भी बैन की हुई हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनकी वजह से उनको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तालीम के जो मैदान है इसमें रुकावटें आ रही हैं, लगता है आपको कि ये जो चीज़ें हो रही हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, ये यूटी बनने के बाद एक तरक्की का तोहफ़ा है उन बच्चों के लिए? आप खुद ही कह रहे हो कि भाई लोग कहते थे कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हम आज़ाद हुए और हमारी तरक्की होगी। तो सबसे पहली तरक्की तो यही होगी कि पिछले 4 महीनों से हम लोगों को पहले तो फ़ोन कॉल से भी महरूम रखा गया, और आज इंटरनेट से, आज के दौर में 1 घंटा अगर आप दिल्ली के अंदर इंटरनेट बंद कर दो, हाहाकार मच जाएगी। आप बम्बे के अंदर, आप किसी भी मेट्रोज़ में जाकर 1 घंटे के लिए नेट बंद कर दो, पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर पिछले 4 महीनों से, 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए। आप कहते हो हालात ठीक हो गए। भाई हालात ठीक हो गए, आप नेट क्यों नहीं चलाते हो? हालात ठीक हो गए। आपने तमाम लीडर्स जो हैं मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जिसमें कांग्रेस है, पैंथर पार्टी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, शाह फैसल हो, सजाद गनी लोन है, आपने उनको गिरफ्तार रखा हुआ आज तक। अगर हालात ठीक है तो क्यों गिरफ्तार रखा आपने उनको? अब बाहर क्यों नहीं निकालते उनको? खैर, इसके मैं आपको ये बताऊं, सियासी तौर पर इसके बहुत ख़तरनाक किस्म के असरात होंगे। और ये जो आप दबा के रखोगे जितना, उतना ही वो लोग ज़्यादा उभरेंगे। आपने जिस किस्म का वो रखा है शिकंजा कस के कि हम इनको दबा के रखेंगे, दबा के जब आप छोड़ोगे ना, तो वो अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वो रिएक्शन होना ही होना है। जी, आखिरी सवाल मेरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कद्दावर एक लीडर हैं, सोर्सेज के इनपुट से ये जानकारी मिल रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, कि उनको श्रीनगर से जम्मू यहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है। क्या लगता है आपकी तरफ से कि मुलाकात होने के कोई अंदाज़ा लग रहा है, वहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है उनसे 370 की मनसूखी के बाद अब इस पैमाने पे जाके? मुझे नहीं लगता है कि अभी शिफ्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है, बहरहाल मेरी मुलाकात हुई, मैं श्रीनगर दानू को मिला था, मैं श्रीनगर मिलने गया था उनको पिछले महीने। मेरी एक बार मुलाकात हुई है उनसे, वो ठीक है। वो कहते हैं कि भाई एक कानूनी जंग है, हम लड़ेंगे इसके लिए, पहले भी लड़ते रहे। अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनिटी के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पहचान के लिए, इसकी तरक्की के लिए हम लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरे साथ एक जानी मानी शख्सियत जो
نیشنل کانفرنس کے قداور اور دگج لیڈر ہیں مظفر اقبال صاحب، 370 کی منسوخی دفعہ 35 سے کی، اور اس کے بعد ریاست کو یوٹی میں، اور اس کے بعد یہ چیزیں سب سے پہلے کی نارملسی ہے، کشمیر کے حالات جو ہیں وہ سکون میں ہے، لیکن سوال اٹھتا ہے انٹرنیٹ سروس کو لے کر کہ اگر حالات امن اور سکون میں ہیں تو آج 100 کچھ دنوں سے جو انٹرنیٹ ہے وہ منتقل کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس ریاست جو یوٹی بن چکی ہے، اس کے جو بچے ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بڑا سوال رہتا تھا کہ یوٹی بننے کے بعد کیا یہ جو 370 کی منسوخی ہوئی ہے صرف اور صرف ایک کھوکھلا درخت تھا جس کا کوئی بھی کام نہیں تھا، اور مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو کشمیر کی تھی وہ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن جج صاحب کی طرف سے اس پہ جواب ملا ہمیں کہ ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو 370 تھی وہ اپنی پہچان تھی، اور 370 کی منسوخی کے بعد ترقی نہیں ہوئی۔ یوٹی سے اسٹیٹ ہوڈ اگر اسٹیٹس ملے تو ترقی ہوتی ہے، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ سے اگر یوٹی کا اسٹیٹس ملے تو یہ ڈیموشن ہو رہی ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ اور کافی طرح کے سوالات ہوئے کہ جس طرح سے نیشنل کانفرنس کو دیش دروہی پارٹی کا بھی ایک بہت بڑا سلوگن دیا جاتا ہے رولنگ پارٹی کی طرف سے، لیکن اس پہ بھی ان کا فرمانا تھا کہ صاف ظاہر سے الفاظوں میں کہ 1947 کو ہندوستان تو آزاد ہوا، لیکن 5 اگست 2019 کو اگر جموں کشمیر رولنگ پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ آزاد ہوا ہے تو پھر ہم اگر لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو ہم دیش دروہی ہی کہلائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں تسکین نیوز 24/7، ویڈیو جرنلسٹ کرن کھلر کے ساتھ عامر سہیل خان، جموں۔